हम ऐसा जीवन जिए कि अगर आज प्रभु बोले ना आज घर आना है, आप हाथ उठा के बोलो प्रभु मैं तेरे लिए जिया, अपनी लाइफ मैंने तेरे लिए प्रभु औरों के लिए ब्लेसिंग बना। आप डर में नहीं, आप खुश होके जाओगे उसके घर में। We should live such a life that the day the Lord calls us back home, we should lift up our hands and say, Lord, I have lived my life for you, not for myself, but for your people, and you'll be happy when you're going home. याद रखना, एक जीवन है जो उसने दिया है, Always remember, you have one life that God has given to you. चेंज नहीं होगा। You cannot change it later. वचन, परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि आपकी एक पुस्तक लिखी जा रही है परमेश्वर के सामने। His holy scriptures tell us that there is a book about you being written in heaven. जैसा आपने किया, Whatever you have done, अगर आपने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया, यीशु ने कहा वो भी, उसका भी पुरस्कार आपको मिलेगा। even if you offered a glass of water to someone, Jesus said it will be rewarded to you. जो पर्दे के पीछे हम जीवन जीते हैं, The life we live behind the scenes. आमीन। क्योंकि अगर दर्शन नहीं तो अबंडेंस नाश कर देगी। आप जानते हैं जिस व्यक्ति के पास दर्शन नहीं है, अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा वो उसको नाश कर देगा। Because if there is no vision and abundance comes, it will destroy them. मगर जब आप अपनी अबंडेंस को परमेश्वर के दर्शन के साथ जोड़ दोगे, But when you connect your abundance to the vision of God, प्रभु को पता है मैं जब इसके जीवन में उंडेलूंगा, इसके द्वारा मैं कई हजारों को ब्लेस कर सकता हूं। the Lord knows when I will pour into His life, through Him I can bless thousands. आमीन, हालेलुया। मैसेज तो मैं कुछ और देने आया था, मगर क्या करूं, आत्मा आज भी कलीसिया से कहता है। The Spirit of God is still speaking to the churches. आमीन। Would you make a commitment today? क्या आप ये वादा I'm करेंगे? going to dream with my Father. मैं अपने पिता के साथ सपने देखूंगा। I'm going to dream with my Father. मैं अपने पिता के साथ सपने देखूंगा। See, because in this ministry we never want to stir you to give by pity. हम कभी भी इस सेवकाई में आपको दया चढ़ा करके दया की भीख मांगना नहीं चाहते, दया के द्वारा आपसे लेना नहीं चाहते कुछ। Only heaven knows सिर्फ स्वर्ग जानता है how many people's medical bills have this ministry paid. कि कितने लोगों के मेडिकल बिल इस सेवकाई ने भरे हैं। Heaven knows. स्वर्ग को पता है। And we will never show it on the screen, और हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे जो किया, because the only reason we give is by faith. क्योंकि एक ही कारण से आपने दिया था, विश्वास से। Okay, so let me go to the word now. तैयार हो आप अगले 3 घंटे के लिए? Are you ready for the next 3 hours? Just kidding, just kidding. Hallelujah. Okay, so आप जानते हो अभी क्या हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में। You know what is happening between India Pakistan? मैं आपको जल्दी से, it's already 2, but I just want to quickly tell you about the prophetic word that God gave us about spiritual Goshen. मैं जल्दी से वो वचन देना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने आत्मिक गोशेन के बारे में हमें बताया। Okay, but उससे पहले एक बात ध्यान से सुनो। But hear carefully before that. Psalm 91 says, "You shall not be afraid of the arrows that fly by the day." भजन 91 कहता है जो तीर दिन में उड़ता है उससे तू डरेगा नहीं। Right? Arrows. Now, and in that time there were arrows. In today's time, when the war happens, there is, missiles. उस समय में एरोज हुआ करते थे, तीर हुआ करते थे। आज जब लड़ाई युद्ध होता है तो मिसाइल्स होती हैं। तो बोलो मेरे पीछे, I will not be afraid of missiles. बोलो मैं मिसाइल से डरूंगा नहीं। क्यों? ये परमेश्वर का वचन है। This is the word of God. और हम बाद में डिक्लेरेशन करेंगे। ज्यूइश रैबाइज जो हैं वो बताते हैं कि अगर आप साम 91 की घोषणा 7 बार करें, that's what they say. I don't want to be dogmatic and make a doctrine out of it. I'm just sharing what they say. यहूदी रबी लोग ऐसा कहते हैं, मैं इसमें से एक शिक्षा नहीं बना रहा हूँ, पर जैसे वो कहते हैं वो बता रहा हूँ। अगर आप साम 91 को घोषणा 7 बार करते हैं, faith will be stirred in your heart for supernatural protection and you will not be afraid. If you declare Psalm 91 7 times, आपके दिल में विश्वास उठ खड़ा होगा और आप डरोगे नहीं किसी बात से। कितनी सारी गवाहियां। अभी लास्ट में मुझे एक बहन यूके से जो आई थी वो बता रही थी 13 साल से मैं कभी फ्लाइट में नहीं गई क्योंकि इतना डर था, उसको पैनिक और एंजाइटी हो जाती थी। साम 91 डिक्लेयर करती रही 13 साल बाद इंडिया आई है, फ्लाइट में अकेली बैठ के, हस्बैंड नहीं आया। So many testimonies we have received. One sister who was in UK was
had the fear of flying, and after 13 years she got delivered and flew alone with little kids without her husband. Amen. Let's see quickly Exodus 8:22 to 23. And in that day I will set apart the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, in order that you may know that I am the Lord in the midst of the land. I will make a difference between my people and your people. Tomorrow this sign shall be. निर्गमन 8 उसका 22 और 23। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं, और मैं अपनी प्रजा को और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। परमेश्वर फैरो के लिए कह रहा है, इजिप्ट शोज द काइंड ऑफ वर्ल्ड एंड हिज पीपल। प्रभु कह रहा है मेरे प्रजा में और जो दुनिया में उनमें एक फर्क होगा। जो धर्मी लोग हैं और जो अधर्मी हैं उनके बीच में एक फर्क होगा। The Lord is saying this to Pharaoh, that there will be a difference between your people and my people, the people representing the world and God's people, the righteous. और परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मिस्र में होगा वो गोशेन में नहीं होगा। The word of God is saying what will happen in Egypt will not happen in मेरे Goshen. पीछे बोलो, जो मिस्र में होगा वो गोशेन में नहीं होगा। Say this after me. What will happen in Egypt will not happen in Goshen. Amen. हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। Our God has not changed. दाऊद जो लड़ाइयों के बीच में था वो ये कहता है श्योरली, वो नहीं कहता तीर आएगा, वो कहता है श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। दाऊद जो युद्ध के बीच में है वो कहता है निश्चय करुणा और भलाई, वो नहीं कह रहा तीर आएगा ही, वो कहता है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेंगे। अगर कोई बोले हाय आपको पता है दिल्ली में मिसाइल गिरने, बोलो निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन के पीछे चलेगी। If someone says there's a missile that fell in Delhi, you say goodness and mercy will follow me all the days of my life. Amen. This scripture kept us entire church COVID free. इस वचन ने हमें पूरी चर्च को कोविड में आजाद No रखा। death. कोई मृत्यु नहीं हुई। उसका वचन जीवित है। His word is alive. मैंने कहा उसका वचन जीवित है। I said His word is alive. हालेलुया। So, और आप गोशेन में बाद में देखोगे वहां जब रोना था तो यहाँ पे हंसना था, वहां पे अंधकार था, यहाँ पे ज्योति था। And you will see when Egypt was crying, Goshen was laughing. When there was darkness in Egypt, there was light in Goshen. Amen. भजन संहिता 103 उसकी पहले से 6वीं आयत तक हम देखेंगे जल्दी से। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये जो वर्ड बेनिफिट इंग्लिश में क्या मुझे मजा नहीं आता। बेनिफिट इज वेरी ट्रांजैक्शनल। दिस वर्ड इज गुडनेस। डोंट फॉरगेट ऑल हिज गुडनेस। इसीलिए हिंदी में अच्छा उपकार, इट्स हिज गुडनेस, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट बेनिफिट। ये उसकी भलाई को दर्शाता है, एक लेन देन को नहीं। उसकी सारी भलाई को भूलना मत। तो परमेश्वर की भलाई को कभी भूलना मत। Do not forget all the goodness of God in your life. अब वो आगे बता रहा है क्या उसकी भलाई है हमारे जीवन में जो आप क्लेम कर सकते हो विश्वास से। Now he is telling you what is His goodness in our life which you can claim by faith. क्या है? Who forgives all your iniquities? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। Who heals all your diseases? वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पहला पापों से क्षमा, Forgiveness of दूसरा sins, बीमारियों से चंगाई, healing from sicknesses. who redeems your life from destruction. वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। So that means you are redeemed from every destruction. आप हर एक विनाश से बचाए जा चुके You हो। can stand firm on this promise. इस बात में डट कर खड़े हो सकते Who हो। इस बात में। crowns you with loving kindness and tender mercies. वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Who satisfies your mouth with good things. वही तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। So that your youth is renewed like the eagles. जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। Amen. Not only He has only forgiven your sins. इतना ही नहीं कि उसने आपके पाप क्षमा किए, He has healed you of your sicknesses. आपकी बीमारियों को उसने चंगा किया He है, has redeemed you from destruction. आपको विनाशों से बचा लिया है, He has crowned you with tender kindness and loving mercy. आपके सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है, He has satisfied your mouth with good things. आपके उस
मुंह को उसने भली वस्तुओं से तृप्त किया and your youth is renewed like the eagles. और आपकी जवानी को उकाबों की तरह नया किया है। No Botox. कोई बोटॉक्स नहीं चाहिए, This is the best Botox. ये सबसे अच्छा बोटॉक्स है। Hallelujah. अगर अपनी जवानी को उकाब किनाई करना है तो उसकी प्रतिज्ञा पर मनन करो सुबह और शाम। If you want to renew your youth like the eagles, meditate on his promises day and night. Hallelujah.